डेफिनेट खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप लोग होमवर्क खत्म करो टाइम से, तो डेफिनेट खत्म होने के लिए ये वीक में अभी एक लेक्चर और है ना हम लोग का। यस सर। शायद, हाँ सर। हाँ, तो नेक्स्ट वीक डेफिनेट खत्म। सर लेवल्स में कितने क्वेश्चन करना है अभी? अभी लेवल्स में आज मैं अनाउंस कर देता हूँ, आज लेक्चर खत्म होएगा ना तब तुम लोगों को बता देता हूँ लेवल्स में कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है सर। And guys, don't forget this chapter has got a big weightage actually. So ऐसा मत कर दो इस चैप्टर के क्वेश्चन इग्नोर करो और बाद में होमवर्क करेंगे। जो होमवर्क दिया जाता है ना उसके साथ रेगुलर रहो। ओके? हाँ। सर वो क्वेश्चन था इंटीग्रल 2 से 3 लिमिट्स थे और x square by 2x square minus 10x plus 25 dx। Oh my God, such an easy question. X square upon ट्राई तो कर एक बार। किया था। नहीं उससे अच्छे से ट्राई नहीं किया एक्चुअली। You didn't try from here. Yes sir. पक्का रहा। अच्छा, most of the student must have got it. What do you say? Yes sir. Yes. अरे पता है उसमें क्या चक्कर है, मैं बताता हूँ तुझे। उसमें तूने क्या नहीं किया वो मैं बताता हूँ। हाँ। नीचे तूने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया, इसलिए तू नहीं। डर गया उस प्रॉब्लम में। किंग लगा के डर गया होगा ना? हाँ सर, किंग लगाया था फिर डर गया। हाँ हाँ, तूने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया। एक स्टेप लिखता हूँ तेरे लिए। हाँ सर, एक हिंट दे नीचे दो। वाला टर्म बोल, चल क्या था? 2x square minus 10x plus 25 प्लस 25। अब देख पता है क्या कर, इसको इस तरह से लिख, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 to 3 लिमिट्स है यहाँ पे। तो मतलब कोशिश करना चाहिए, या तो ये प्रोफाइल है क्वाड्रेटिक हाँ अपॉन सर, पर आपने बोला कि वो फंसोगे ना प्रोफाइल से। हाँ वहाँ तो फंसोगे नहीं, हो तो जाएगा, बट you'll be pissed actually by the end you will say क्या क्वेश्चंस देना शुरू कर दिया ऐसे। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आएंगे तो मर जाएंगे। So the reason I am ignoring that method, ठीक है। but I can write it x minus 5 whole square plus x square, can I? हाँ हाँ, yes 2 to 3, this is I. Now use king. अब क्या करना है सर? अभी मैं कर king and add answer. These are the Yes. steps. बराबर? यस सर, थैंक यू। Guys, yesterday I took these two questions. It was my last lecture in 3 years batch yesterday, and I had given them as a homework actually. So I thought अभी मैं रब करने वाला था इसको। I thought रब क्यों करते हैं अपन, 4 के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं ना ये क्वेश्चन। Guys, we have done fifth property, you know. We are into fifth property, I guess. किंग। यस सर। And how many question around we have finished? Can anyone tell me the number of questions? Sir, 9 including homework. 9 including homework. I mean, enough number of questions we have done. Some good questions we'll do today, and we'll try to finish property number 6 and 7 also. Okay, and then you'll get a good amount of homework in level assignment and that extra screenshot which I send generally. Okay, so guys, just look at this question. This is a very easy question. Just look at the limit, guys. Look at the limit. Isn't it limit is constant here? If x is constant, then limit is constant. यस सर। यस सर। Isn't it? So, I mean, this question is an easy question in the sense that the limit is constant here. No. I mean, what I am saying, try and understand what I want to ask you, what I want to ask you, try to understand the reason of asking the question. This is what I wanted to tell you. Guys, this is, look at the two questions and look at the huge difference in these two questions actually. If x is fixed, then this is fixed and this is fixed. Okay. If x is not fixed, even then, if this changes, then this changes simultaneously, the same. Whatever quantity we'll get here, the same quantity we get here. What do you say? Yes or no? Yes sir. यस Like सर। suppose x is equal to I write a value x is equal to 10.3. Then this will be 10 and this will be 10. Both places, isn't it? यस यस सर। Is it? Are you sure
What I am saying is okay. Box. Hmm? Okay, I ask a different question to you. If I write any value of x here, the same value I have to write here, barabar? Yes, sir. Do I have to write the same value here also? No. No, sir. No. No, That sir. means this x and this x are same. How can you say this? Barabar na? These two x are not same. अरे बाबा लिमिट ऐसे ही तो रख रहा हूं x is equal to 0 to x is equal to box x and you are solving it. Okay. Now at this moment and here also x is equal to 0 to x is equal to x. Now if you are putting x is equal to 1 here, guys, if you are putting x is equal to 1.2 here, x is equal to 1.2 here, 1.2 here, then what will be the question? Can anyone tell me the first question क्या बनेगा? 0 to 1 0 to 1. box x dx, isn't it? Yes, sir. And this one is nothing at this moment. This is box x, where x is what? 1.1 whatever, 1.1 or 1.2, कुछ भी 1 और 2 के बीच में, है ना? So now when you integrate, this box x will come out because this is a constant, no in any values. 0 to 1 में ये भी constant रहने ही वाला है ना. 0 to 1.1 में क्या बनने वाला है बच्चों? ये 1 ही बनेगा ना? जीरो बनेगा ना सर? 0. 0 to 1.1 में this will become 0 0. भी I'm बन sorry. सकता है, 1 भी बन सकता है. Yeah, I'm sorry. This will become दोनों बन सकते हैं. हाँ 0 to तो वो 1.1 आपको में अलग-अलग अरे सुनो ना, नहीं, सुनो ना, 1 सुनो ना, minus. please. This will be something like this. 0 to 1.1 अगर मैं लिखता हूँ उसको, तो ये तो 0 to 1 ही बन जाएगा ना. At this moment तो this is coming out to be 0 ही only, directly 0. हाँ. Yes. Yes, sir. बराबर? Yes, sir. बच्चों don't forget I am putting x from x belonging to 0 to 1. 1. No, 0 to 1 नहीं. X is 0. 0 to 1.1. 0 to 1.1. Box x 0 से 1 आपका. बॉक्स एक्स 0 से 1 आ रहा है, ये बात अलग है. अच्छा नाउ आई एम पुटिंग, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है. हाँ बोलो ना प्लीज. So I didn't understand why this came out to be 0. अरे बाबा x अगर 0 to 1.1 लूंगा तो ये 1.1 का बॉक्स कितना आ गया? 1. 0 मतलब x का वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ ना यहाँ पे. x का वैल्यू फिक्स किया 1.1 का, तो उसका बॉक्स बाहर आ गया ना. नाउ द लिमिट इज 0 to 1. जब लिमिट 0 to 1 रहेगा तो ये बॉक्स x कितना हो जाएगा बताओ? So 1 क्यों नहीं हो सकता? वही मुझे अरे confusion. 1, this is not never be 1, this is always 1 minus when we write the 0 upper limit plus like that, 1. Okay, sir. right? Now I'll move back, you will understand it in the second part. If I put x is equal to 2.2, x is equal to 2.2, then this becomes what बच्चों? Tell me. 0 to 0 to and box 2 x. बच जाएगा सर. box x dx. बच्चों can you integrate immediately? No, you can't. No, It you करना will write पड़ेगा. it, No, you sir. will write it 0 to 1 and 1 to 2. 1 isn't to it? 2. Yes. Yes, sir. And 1 to 2, isn't it? Yes, sir. फिर सर 0 to 1 का आ जाएगा सर. 0 to 1 में this is 0 we have already calculated. हाँ. और 1 to 2 में क्या 1 बन to जाएगा 2, बच्चों? 1 1 बनेगा ना? 1 dx. 1 dx. इसका फाइनल का आंसर बता सकते हो क्या क्या आएगा? 1. 1. Sorry, Come on sorry. यार, 1. 2 minus 1 1 ही आएगा ना? Sorry. बच्चों x from 0 to मतलब x अगर 2.2 तक लेके जाऊंगा तो इसका आंसर 1 आता है, राइट? मैं इसको एक बार 1 स्क्वायर लिख देता हूं तुम्हारे लिए. 1 स्क्वायर लिख देता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके अच्छा 3.3 रखते हैं एक बार. 3.3 x equal to 3.3, x equal to 3.3. What do you get? 0 to 3 ना? 0 Yes, to 3 में ये क्या चेंज होएगा बच्चों? 0 to 3 में क्या चेंज होएगा ये? सर ये 0 to 1, 1 to 2 and 2 से 3 का two एक to अलग आ जाएगा. 0 to 1 में 0, 1 to ये 1 आ जाएगा और ये बच्चों ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा 2 सर. हो जाएगा 2 ना? आएगा. तो 1 plus 2 बनेगा ना, तो ये कितना बनेगा बता सकते हो क्या? 3. Answer will be 3. So बच्चों don't you think the first question is depending on x? This x and this x are not same, remember.
No, अरे sir. बाबा एक बात बताओ तुम लोग मुझे, इसको रफ वर्क समझ के मैं एक बार हटाता हूँ तुम लोग के लिए। देखो तुम्हारा प्रॉब्लम किधर में हो रहा है मुझे समझ में आ चुका है अभी। देखो ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना, है ना बच्चों। when we write fx is equal to 0 to x ln 1 minus t divided by 1 plus t dt, then we are writing the limits t equal to 0 to x, isn't it? Now if I'm asking what is f of half, बच्चों what will you write f of half? x is equal to half रखोगे तो बच्चों क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट टू करोगे। हाफ में इंटीग्रेट। मुझे पता नहीं इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, कुछ गंदा सा ही आता होगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, तो बच्चों अपर लिमिट जब रखोगे इसमें इंटीग्रेट करने के बाद, तो ये वाला x जो है t की जगह जाएगा ना। हाँ तो सर। ये x t की जगह जाएगा, तो तुम्हें f ऑफ हाफ निकालना होगा तो हाफ t की जगह जाएगा, तो x ये वाला चेंज होगा कि अंदर कुछ चेंजेस चलेंगे, ऐसे ही सर लिखोगे ऊपर वाला लिमिट अंदर अपर वाला- लिमिट। 0 to half ln 1 minus t upon 1 plus t, ये आएगा ना हाँ सर यस सर। बच्चों, व्हाट डू यू से? यस Yes, sir. बराबर है। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब बताओ, अब इसमें कोई चेंज हुआ क्या क्वेश्चन में? नहीं अभी ये रहेगा ना? नहीं, सर। प्रॉपर्टी है सर। अभी चेंज, ये हम लोगों ने शायद पहले डिस्कस किया है क्या? नहीं मतलब इतने डिटेल में नहीं किया इतने सर। डिटेल में नहीं किया, लेकिन लिमिट्स में किया था, मुझे याद आ रहा है ना? हाँ सर वो शायद। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करने वाला जो फंक्शन था, है ना यस बच्चों? एक्चुअली एफ ऑफ एक्स में ये जो होता है ना, ये वेरिएबल यही वेरी करता है। ये अंदर जो लिखा होता है dx अगर लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने के बाद ये x अंदर ट्रांसफर होता है। x हाफ यहाँ लिखोगे तो हाफ यहाँ पे लिखोगे। चलो इसको इन डिटेल बाद में भी डिस्कस करेंगे। मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही छोड़ूंगा मैं अभी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो कि बेटर क्वेश्चन है, इनफैक्ट देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने उसके बेटा पहला क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो ना, मैं बता दूं, इसका भी हिंट दे दूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है। अरे ये तो मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया 3 ईयर के लिए, राइट? तुम लोग को लिखा हुआ था इसलिए करा रहा हूँ। 0 to x लिमिट है, तो तुम नहीं समझते कि बच्चों 0 to x लिमिट में ये बॉक्स x हमेशा चेंज होता चला जाएगा जैसे जैसे x चेंज होएगा, क्या बोलते हो? यस सर। तो बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ 0 to 1 0 dx प्लस 1 to 2 1 dx प्लस 2 to 3 2 to 3, what should I write? 2dx 2dx। अब बस बच्चों, अब आगे चल के यहाँ पे रुकते हैं एक बार। बच्चों मानो ये वाला x कुछ 10.7 है, 10.7 है। बच्चों बताओ यहाँ जो टर्म आएगी वो वाली क्या टर्म आएगी? 10.7 है ना, तो 9 to 10 में क्या है? बच्चों एक मिनट 9 to 10 में क्या आएगा? 9dx आएगा ना, 9dx आएगा और फिर सर। बच्चों 10 to 10.7 में क्या आएगा? 10dx 10dx आएगा ना, मानते हो ना? करेक्ट ऐसे होगा ना? हाँ सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, x जो है उससे पहले बॉक्स x आता है कि उसके बाद में बॉक्स x आता है? x कुछ भी हो, उसके पहले। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन जो बन रहा है, हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसको ऐसे मैं लिखूं क्या, ऐसे लिखूं क्या? तुम लोग जरा आराम से सोच के बताना। बॉक्स x माइनस 1 से बॉक्स x, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा बताओ? करेक्ट, बॉक्स x माइनस 1 बॉक्स एक्स माइनस 1 dx। यहाँ क्या आएगा? यहाँ बॉक्स x माइनस 1 dx। बॉक्स x माइनस 1 आएगा कि बॉक्स x आएगा बच्चों? बॉक्स x माइनस 1 -1 अब बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बता सकते हो? बॉक्स x2, बॉक्स x से बॉक्स x प्लस 1 और बॉक्स और यहाँ क्या आएगा बच्चों? बॉक्स x समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो क्वेश्चन कितना ऐसा लग रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग आ गया तो टफ नहीं है एक्चुअली, लेकिन क्वेश्चन को करना ऐसा पड़ेगा। बच्चों अब ये सीरीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बताओ? अभी भी यस सर बन जाएगी सर। ये सीरीज बन जाएगी बच्चों। यहाँ तक तो सीरीज बनेगी, यहाँ तक तो कुछ एपी, कुछ ऐसा कुछ एपी या जीपी ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ ये रुक जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो लास्ट इसमें टर्म एक्स पे आ नहीं जाएगा ना, इसमें एक्स आ जाएगा ना। अरे बाबा ये तो कांस्टेंट है ना, इसके और उसके ड्यूरेशन में तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बॉक्स Yes, एक्स से एक्स तक ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा, बराबर है। और Yes, फिर sir. 1 का इंटीग्रल पता है, वो x माइनस बॉक्स एक्स बन ही जाएगा। मानते हो? तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया बता सकते हो?
लिखते हैं इसको, बताओ क्या बना, यहाँ क्या बना पहले बताओ। 1 इधर में 2 2 3। अच्छा यहाँ बताओ यहाँ कितना बनेगा। 9 Box X. बॉक्स x माइनस 1 बाहर आएगा, हाँ सर। हाँ सर. राइट। उसके बाद 1 बचेगा, हाँ सर। बॉक्स x माइनस 1 बाहर आएगा, Box X minus 1. राइट। इसके बाद 1 बचेगा, 1 बचेगा हाँ, तो one. 1 का इंटीग्रल कितना आएगा बताओ। बॉक्स x माइनस बॉक्स x प्लस 1, 1 ही तो Plus one. बचेगा बच्चों यहाँ पे। यस सर। क्या बोलते हो गाइस। Yes sir. अरे बाबा इसको Yes, बाहर sir. निकाल के इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट वाला लोअर लिमिट वाला बॉक्स x तो कट जाएगा और 1 ही बचेगा ना। यस बच्चों थोड़ा हाँ, साथ sir. दे रहे यार, थोड़ा स्ट्रांगली पढ़ो ना, अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा Yes. ज्यादा साथ देना की जरूरत पड़ती है। तो इसको Yes. मैं लिख दूं क्या यहाँ बॉक्स x माइनस 1। Yes sir. बच्चों ये AP बन रही है ना, AP। Yes, sir. यस हाँ sir. नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या इसमें, यस सर कितनी टर्म्स है बच्चों यहाँ से यहाँ तक। X minus 1. बॉक्स x माइनस 1 टर्म्स है, 1 से बॉक्स x माइनस 1 है ना, तो बॉक्स x माइनस 1 हाँ राइट। बॉक्स x माइनस 1 टर्म्स का AP का सम कितना हो जाएगा बच्चों, n/2। n/2 मतलब बॉक्स x माइनस 1/2। वो- बच्चों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड पे। दिख रहा है sir. मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बॉक्स एक्स प्लस लास्ट टर्म। बच्चों ये 1 1 कट गया। ये आंसर किसका आया बच्चों, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। प्लस क्या आएगा बच्चों बताओ, बॉक्स x बाहर निकल गया, अंदर Box कितना x into बचेगा? x minus box इंटू x. एक्स माइनस बॉक्स x माइनस बॉक्स x। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे एरो मार्क करके यहाँ लिख रहा हूँ तुम लोग को। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना, बॉक्स x इंटू बॉक्स x माइनस 1/2, बॉक्स x इंटू बॉक्स x माइनस 1/2, ये तो ये वाली टर्म आ गई, प्लस बॉक्स x इंटू x माइनस बॉक्स x माइनस बॉक्स x। सर जो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देना बॉक्स। नहीं मैं guys can you hear me? Yes sir. सब कुछ फ्रीज हो गया था, शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, राइट। हाँ गाइस फॉर्मूला भूल जाओ प्लीज, फॉर्मूले में मत रहो ना यार, कितना इतने दिन से हम लोग बात कर रहे हैं। Maturity is important. Try to understand the thing what he is wanting to ask you. उसको फॉलो अप में लेके आओ। फॉर्मूले ब्रांड स्टूडेंट बनोगे ना तो बच्चों दिक्कत आएगी बाद में हम लोग को, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन वाज अ गुड क्वेश्चन इन द सेंस आई विल नॉट से कि जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे करके नहीं आएंगे, नहीं 1000 बच्चे तो करके आएंगे, मतलब जो टॉप 1000 में आते हैं वो बच्चे तो करके आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। अच्छा इसमें कब कुछ भी दम नहीं था, 0 to x में बॉक्स x डाला है, अगर 0 to 10 डालता, अरे ये x एक वेरिएबल ही तो है, 0 से 10 डालता तो इसको 10 पार्ट्स में ब्रेक कर देते ना बच्चों, तो आंसर आ जाता ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes sir. तो बेसिक समझो, इस क्वेश्चन का बेसिक समझो। इस क्वेश्चन का बेसिक ये है कि हमें अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जो कि मतलब जनरली मैं अवॉइड करता हूं कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जनरली मैं सोचता हूं कि नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। x का वैल्यू अगर 10.7 होता तो क्या करते, इसको 0 to 1, 1 to 2 और 9 to 10 लेके जाते और फिर 10 to 10.7 लेके जाते, ऐसे सोचे, राइट। तो अगर 0 to x है तो कैसे लेके जाएंगे कि x से जस्ट पहले आता है बॉक्स x, तो बॉक्स x तक लेके जाएंगे, पहले बॉक्स x माइनस 1 से बॉक्स x तक लेके जाएंगे और फिर बॉक्स x से x तक लिख देंगे। बच्चों यही तो हुआ 9 से 10 का मतलब 10 से 10.7, यही तो हुआ, बताओ। यस सर। जब भी बच्चों हमें दिक्कत आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम किसी भी चीज को इसी तरह से मैनिपुलेट करके एग्जामिनेशन हॉल में सोचते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा सोचना करेक्ट है, घर पे भी ऐसा सोचना करेक्ट है, लेकिन बच्चों ओरिजिनल मेथड जो ना, ओरिजिनल मतलब ऐसे लिख के और उसको सॉल्व करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोलता हूँ कि आप 50 क्वेश्चन की जगह मेरे से पूछ लोगे, सर 50 की टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं, अभी इतना टाइम मिलता ही नहीं है। आप तो कोई 10 अच्छे क्वेश्चन बता दो जिसमें 1 घंटा लग जाए चलेगा, लेकिन वो 10 क्वेश्चन ही करेंगे बस, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे तो अभी सिलेबस चल रहा है तो उसको
हम लोग इतना इग्नोरेंस नहीं दे सकते, लेकिन 10 अच्छे क्वेश्चन करना इज इक्वल टू 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वो बराबर होता है बच्चों, मान के चलो। ये वाले प्रॉब्लम में अब भी किसी को डाउट है क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो लास्ट वाला जो इंटीग्रल है सर, आपने बॉक्स एक्स से बॉक्स एक्स प्लस 1 ऐसे क्यों नहीं लिया? बॉक्स एक्स से बॉक्स एक्स प्लस 1, तो हाँ, हमारा लिमिट तो एक्स तक ही है ना, बॉक्स एक्स प्लस 1 तो एक्स से ज्यादा हो जाएगा ना। बॉक्स एक्स की क्वालिटी क्या है पता है? यही तो होती है डेफिनेशन, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं इक्वल टू तो होता ही नहीं है, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन रुक इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। हाँ। अब बता, एक्स तो कम होता है ना, यस सर, ज्यादा हो जाएगा। एक्स प्लस 1 लिख देगा तो क्या हो जाएगा? एक्स से भी आगे निकल जाएगा ना। यस सर, यस। बॉक्स एक्स से बॉक्स एक्स प्लस 1, अगर तू इसको बॉक्स एक्स प्लस 1 लिख रहा है तो बॉक्स हाँ। एक्स प्लस 1 एक्स से ज्यादा हो जाएगा ना, एक्स से ज्यादा हो जाएगा। हाँ बराबर ना। यस। 10.7 की जगह कहाँ निकल जाएगा पता है? 11.7 निकल जाएगा। 11.7 अपना, हाँ आगे हो जाएगा। बराबर है। यस। और किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नहीं सर, सर ये जो क्वेश्चन जो आपने लास्ट टाइम दिया था, ये जो आपने ऊपर लिखा है, इसका आंसर हाफ है ना? हाँ बेटा, इसका आंसर हाफ है। इसका 1 आ जाएगा ना, राइट हैंड साइड का 1 आ जाएगा सॉल्व करने से, और 2i इज इक्वल टू बनाने का मतलब i इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, है ना। यस अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो लास्ट टाइम का ऐसा नहीं जो बचा हुआ है और हम लोग इग्नोर मार रहे हैं? सर वो एक और स्क्रीनशॉट होमवर्क में दिया था, वापस एक बार बोलो। एक होमवर्क में एक और प्रॉब्लम दिया था। फर्स्ट किसी को वाला। क्या था उसका आंसर? सर नहीं दिया था इंटीग्रल क्या? 0 to pi by 2 sin cube x upon सर आंसर पाई माइनस 1/4 आ रहा है। हाँ, हाँ, पाई ऐसे माइनस कुछ 1 भी बाई आ 4, रहा है। या ये हाँ। मैं लिख देता हूँ, ये वाला आंसर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट का यही लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का ये कोई प्रॉब्लम था, इसका आंसर आ गया कितना? हाफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था होमवर्क का? 0 to, बच्चों क्या था, लिमिट क्या था? pi/2 एंड साइन sin क्यूब एक्स, cube x upon sin x plus cos x dx। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका आंसर वैसे मैंने शायद अनाउंस कर दिया था क्लास में, नहीं? नहीं किया था आपने, आप बोले किया बाद था में सर। करूंगा। किया पाई माइनस 1/4 है इसका आंसर, यही है ना? Yes. अच्छा, तुम्हें पता है ना इसमें किंग लगा के ऐड करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, लगाते ही हाँ सर, नीचे वाला फैक्टर सर तो फिर कट 1 जाता है, प्लस साइन कॉस नॉर्मल इंटीग्रल में कन्वर्ट फिर वो इंटीग्रेट हो जाता है, आगे वाला तो इंटीग्रेट हो जाता है ना बच्चों। हाँ सर। यस सर। राइट बच्चों, तुम्हारे लिए ये होमवर्क है अभी, है ना, इसको सोचना। इसको जरा एक बार पिक्चर ले लो बोर्ड का। यार बच्चों, होमवर्क तो करना शुरू करो ना यार, अदरवाइज तो अपन पीछे रह जाएंगे। कितने दिन तक मतलब अपन लोग बोर्ड पे ही प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करते रहेंगे तो गलत हो जाएगा ना। सर आपने लास्ट टाइम लिख के नहीं दिया था बोर्ड पे लेवल के सर दे दो होमवर्क। हाँ नहीं, ऐसे तो अच्छा है, इतना तुम्हारा बैच मतलब 3 इयर्स के ऑलमोस्ट पैरेलल है अभी, राइट। अभी थोड़ा सा डिप मारोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। मैं मतलब बोर्ड पे अगर कराता रहूंगा सब चीजें तो पीछे रह ही जाओगे ना, मतलब मुझे थोड़ी आगे जाना है, तुम्हें ही आगे जाना है ना। इरेज करूँ क्या ये? सर यस सर, आप इरेज कर बोल दीजिए। बेटा। सर आपने वो जो 2 स्क्रीनशॉट दिया था ना सर, उसमें वो फर्स्ट वाले स्क्रीनशॉट में मेरे को बस 2 क्वेश्चन आए नहीं सर, तो आप हिंट दे सकते हो क्या, फिर मैं कर लूं? ग्रुप पे पूछना, ग्रुप पे पूछ। बाद में अरे पहले ग्रुप पे पूछ ले। अपन ने पता है ठीक है इतने सर। सुधार कर लिए ना कि अब मन करता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फर्स्ट डे जब पढ़ा रहा था तो लगता था पता नहीं आईटीएन स्पेस 22 में कैसे रिजल्ट निकालेगा, पर अभी इतने सुधार कर लेना ग्रुप पे। ऐसे मैं देखता हूँ कुछ बच्चे तो इतना बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस लिखते हैं ना, एकदम मजा आता है कि यार ये सही में मतलब अच्छे बैचेस में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो तुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना आर्यन, उसको एक बार ग्रुप पे लिख। आई एम प्रिटी श्योर ग्रुप पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आंसर करते ही हैं, और आजकल ग्रुप पे पढ़ता हूँ, वो देखा भी, कल किसी ने नोटिस भी किया होगा, एक बच्चे को मैंने निकाला ग्रुप से। हाँ सर, आप यस सर, हमने देखा। हाँ अभी चेतन। हाँ, क्यों निकाला? अरे यार उसने ग्रुप 3 में एडमिशन दिया, ऐसा नहीं मतलब ये गुड स्टूडेंट, पढ़ने वाला बच्चा है, कोई न्यूसेंस सा कुछ बात, एक दो टेक्स्ट न्यूसेंस थे। पहले मैं देखता नहीं था, तब तक ठीक था। अब यार पढ़ाई की बात करो ना यार, एग्जाम पास में आ गया है, कम से हाँ कम सर, पढ़ बहुत के IIT हाँ निकाल। सर, दूसरे ग्रुप में भी किया था उसने सर ऐसे अंशुल सर के ग्रुप में भी लिखा था, बहुत टाइम पास स्पैम करता कर रहा है। टाइम पास नहीं यार, अभी पढ़ लो। बहुत स्पैम
वो पढ़ लो, तुम्हारा भी रिजल्ट है, एडिन स्पेस को भी रिजल्ट निकालना है, अगर नहीं पढ़ोगे इन दिनों में मस्तियां मारोगे, इसलिए एक बार मैंने बार किया, बट स्टिल आई फाइंड इज अ गुड स्टूडेंट, मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने चेक किए पूरे ग्रुप पे, वो मतलब अच्छे मेथड से कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करता है, सो दैट वे आई लाइक हिम, बट न्यूसेंस तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं चलेगा, कल इसलिए निकला, आई विल ऐड हिम प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर, दैट डिपेंड्स। सो गाइस प्रॉपर्टी 5 में हम लोग ने 11 क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत होते हैं, अब इस पे अच्छा और बुरा क्वेश्चन तो क्या ही करना, तो एक क्वेश्चन बच्चों प्रॉपर्टी 5 के कंटिन्यूएशन में मैं ले रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में, हालांकि इससे कम एफिलिएट करता है लेकिन फिर भी ले रहा हूँ, और सब बच्चे इसको सीखना ठीक से। बच्चों जब ये ऐसा लिमिट आता है ना a2 1/a, इसको बच्चों प्रॉपर्टी 5 में ऐसे करके लिखेंगे अपन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रॉपर्टी 5 नहीं है एक्चुअली। एग्जैक्टली क्या मतलब 1% ही प्रॉपर्टी 5 मान लो, तुम चाहो तो 0 कर सकते हो, मतलब गर्मा गर्मी मत करो कि नहीं सर प्रॉपर्टी 5 तो लगी नहीं रही, और जो ऐसा लिमिट होगा ना a2 1/a, मतलब रेसिप्रोकल लिमिट, और यहाँ पे ब्ला ब्ला कुछ लिमिट dx दिया हुआ है, तो जो एक सब्स्टिट्यूशन है ना x इज इक्वल टू 1/t, पता है ये सब्स्टिट्यूशन है ना, दिस वर्क्स गुड, अच्छा लगता है इसको, इस सब्स्टिट्यूशन को करने से कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ यू नो, हंसने का मन करता है दिया ही क्यों यार, इट्स लाइक दैट। बट बच्चों आईआईटी इस पे क्वेश्चन जब भी उसने पूछा है ना, 2-3 बार पूछा है, राइट, जब भी उसने पूछा घुमा के रख दिया है पूरे स्टूडेंट्स को। मैं भी दूंगा एक क्वेश्चन तुम लोग को, पहले जरा समझ लो ये बला क्या है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 और 2 मैं करूंगा, थर्ड तुम्हारे लिए, 0 to 1, मतलब इजी वाले मैं करूंगा, अच्छा वाला तुम्हारे लिए, ln x डिवाइडेड बाय कुछ ले लो 1 + x² dx। बच्चों ध्यान दो, ओह सॉरी 0 to infinity, बच्चों 0 to infinity वाला 0 + to infinity माइनस, ऐसा ही हुआ ना? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा बताओ ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं है? है सर, है सर। हाँ Yes, है sir. ना? तो ऐसे तो हम लोग चांस नहीं लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट ये भी एक मेथड है और अच्छा मेथड है, इसीलिए प्रॉपर्टी 5 में एक्स्ट्रा लिख के किया है। प्रॉपर्टी 4, 5, 6, 7 ये 4 ही प्रॉपर्टी मेन है जो पूरी इंटीग्रल कैलकुलस कवर करती है, बाकी सब एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो तो हम देखते ही हैं। और जो यहाँ पे x को 1/t डाला तो dx क्या बन गया बताओ? -1/t² dt है ना? अच्छा ये इंटीग्रल क्या बना बताओ? 0 + इन्फिनिटी बन गया, और इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0, और ये बन जाएगा ln, क्या लिखूं बच्चों इधर? -ln t डिवाइडेड बाय 1 + t²/t², बराबर ना? हाँ। x को 1/t सर ये डाल आपने रहा है। लिमिट्स उल्टी क्यों ले ली? क्योंकि x = 1/t लिख रहा अरे है। बाबा x को 1/t डाल रहा है, जब ये 0+ होगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना, हाँ हाँ सर। और जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये 0 बन जाएगा। सर वो t के लिमिट्स है ना सर। हाँ ये ऑब्वियसली लिमिट तो ये तो मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि लिमिट चेंज होने के बाद क्वेश्चन चेंज। ओके वो t वाला आ गया, अब dt में क्या लिखना है? -1/t² dt, से यस और नो बच्चों? दिस इज ओवर। यस सर। बच्चों ये क्या बन गया? -ln t/1 + t²। सर लिमिट प्लस का आएगा ना सर, So, plus आएगा ना sir? Minus cancel हो जाएगा. माइनस माइनस हो गया ना। सॉरी प्लस, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, इसकी लिमिट अगर मैं इंटरचेंज करूं तब तो माइनस हो जाएगा? हाँ क्या बोलते हो? क्वेश्चन देखो और लास्ट स्टेप देखो, सेम है कि नहीं है? यस सर। यस सर, सेम है। सेम ही है ना? प्रॉपर्टी 1 बच्चों i = क्या है? दिस इंप्लाइज i = क्या है? 0 -i = 0, बराबर है ना? क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? यस सर। यस सर। गाइस ये दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी लॉ जो है ना वो मैथ्स हैंडल नहीं करता है, मैथ्स का प्रॉब्लम कोई लॉ हैंडल नहीं करता है, वो ब्रेन जो है ना उसको शार्पन करना है, तो अच्छे प्रॉब्लम्स पे लगे रहो, लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे, ऐसा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, तो मर जाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ विच इज करेक्ट, है ना, जो फिट होता है तुम लोगों पे, सब पे नहीं, 99% लोगों में फिट होता है। जैसे मॉड्यूल का एक्सरसाइज 3 किसी बच्चे को नहीं बन रहा है, एक एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, एक गाइड लेगा और उसके सोल्ड एग्जांपल पढ़ लेगा,
सॉल्व एग्जांपल पढ़ने से उसको जैसे 40 क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज में है, मैथमेटिक्स मॉड्यूल के थर्ड एक्सरसाइज में, जब वो सॉल्व एग्जांपल पढ़ लेगा तो उसको थोड़े बहुत आइडियाज डेवलप हो जाएंगे उससे, क्वेश्चन सॉल्व करने के आइडियाज। तो 40 क्वेश्चन में से अगर उसको 40 ही नहीं आ रहे थे तो अब 20 आना शुरू हो जाएंगे, राइट। जिस बच्चों को शुरुआत ही अच्छी नहीं हो रही है, जैसे मानो कोई भी मॉड्यूल में शुरुआत अच्छी नहीं हुई, उसको लग रहा है यार मेरे को कुछ भी बन नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ेगा। ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ेगा मतलब किसी भी बुक के कुछ एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेगा, या कुछ XYZ गाइड के क्वेश्चन जो है सोल्ड एग्जाम्पल्स की तरह पढ़ लेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा तो उसको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। बच्चों वो बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशन है, घिसाई जरूरी है, घिसाई। मतलब ये जो मैंने मेथड बताया है ना, इसमें सिर्फ इतना ही याद करने का है कि यार a2 1/a मतलब लिमिट और उसका रेसिप्रोकल अगर है तो x को 1/t लिखना भी एक पार्ट है सॉल्यूशन का। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, बट ये नहीं है कि ये इससे सॉल्यूशन आ ही जाएगा, गारंटी नहीं कर सकते हैं, समझो। यही बेसिक है मैथ्स का। मैथ्स का बेसिक जिसको समझ में आ गया कि इस बेसिक के थ्रू हम जेई में रैंक ला सकते हैं, राइट, तो वो गया, फिर तो गया जेई, मतलब उसमें उसको जाना ही जाना है। और जिसने इस बेसिक को नहीं समझ के और सेटिस्फेक्शन के लिए जेई का प्रिपरेशन किया, नहीं यार मॉड्यूल करने के लिए बोला है, करना तो पड़ेगा ही कैसे भी, कल डाउट डिस्कशन होएगा तो नहीं करूंगा तो मेरा बैंड बजेगा, लाइक दैट। उस बच्चे को जो हेल्प है ना बच्चों, ये कल ही एग्जांपल सामने आया, तुम्हारे ही किसी एक बैच से सामने आया, इसलिए बोल रहा हूँ, राइट, कि वो क्या करता है, वो उठा करके कोई एक बुक लेता है, उसके एग्जांपल पढ़ता है ना, तो बुकलेट जल्दी जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो वो उसकी अचीवमेंट नहीं है बच्चों, वो उसका फेल्योर है, समझ लो एक चीज, वो मत करो। जितना स्ट्रगल करोगे, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट वही है, थोड़ा स्ट्रगल। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं। 4 मिनट में भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, एग्जाम में तो 2 मिनट मिलते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है तो 2 मिनट में, 3 मिनट में समझ में आ गया क्या करना है तो ठीक है, पढ़ा उठाओ और ग्रुप पे डाल दो। पहली हेल्प दोस्तों की, और बच्चों लास्ट हेल्प टीचर की, बस। इससे ये जो इस लॉ पे चल रहा है ना, उसको आईआईटी होना ही होना है। जो इस लॉ को ब्रेक कर रहा है कि उठा के 10 15 20 एग्जांपल सॉल्व कर लो और उसके बाद में मॉड्यूल सॉल्व कर लो, तो अपना थियरी पर बेस्ड रह के ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मॉड्यूल में जो एग्जांपल दिए हुए वो करो ना, वो डिजाइन्ड एग्जांपल्स हैं, सारे टीचर्स ने मिलकर फाइनल किए हैं कि मॉड्यूल के ये एग्जांपल करने से थियरी में परफेक्शन आता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम सीक्वेंस पे, उसका आंसर भी 0 ही आएगा। मुझे बताओ कोई स्पीड से आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि सर इतना जल्दी से कैसे बोल रहे हैं कि 0 आएगा? मुझे डाउट है बेटा, एक मिनट है पहले, अच्छा क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, सॉरी, पहले तुम पूछो। ये आपने अभी जो एक्स्ट्रा लिखा है, मतलब ये रेसिप्रोकल वाला, उसमें हम कभी किंग नहीं लगा रहे हैं? नहीं बेटा, नहीं लगा रहे, मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा लिखा है इसमें। एक्चुअली किंग में क्या करते थे तुझे याद है? किंग में हम लोग राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आता था वो -i जैसा आ जाता था ना, 0 बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आया है ना, इसलिए किंग में मैंने इसको कंटिन्यूटी दे दी है। अदरवाइज इसको एक्स्ट्रा में लास्ट में भी कराते थे तो चलता था। नहीं, मैंने शुरू में बोला कि क्लेम मत कर दो कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी का कोई एक पार्ट है, राइट। अच्छा वेदांत कुछ पूछना है? वेदांत बोलना। दोस्तों मुझे ये पूछना था, आपने अभी जो एक्सरसाइज 3 का बोला तो वो उसमें ऐसा कुछ स्पेशल ट्रिक्स नहीं रहती, वो जो थियरी नोट से ही जम जाएगी एक्सरसाइज 3? हाँ जमनी चाहिए ना, जमनी चाहिए, वरना दोस्त है, दोस्तों के बाद टीचर है, मान लो तेरे को 40 में से 40 ही नहीं आया तो प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? नहीं है ना कोई इशू, मत करना उस टाइम, बाद में कर लेना। ओके, उसको सोल्ड एग्जांपल देख के करना तो नहीं करने जैसा ही हो गया ना। तू एक बार कितने दिन तक याद रख सकता है? टेम्परेरी सर 1-2 दिन तक याद एक छोटी सी चीज बता, एक छोटा सा तेरे को स्क्रैच इधर आएगा, फिंगर में स्क्रैच आएगा, राइट, छोटा बहुत छोटा स्क्रैच, और एक दिन में ठीक हो जाएगा, ओके। और तेरा ये जो है एल्बो, ये टूट जाएगा कोई एक्सीडेंट से। एक एग्जांपल, आई एम सॉरी है, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मानो किसी का एल्बो टूटा, ये उसको महीने भर का प्लास्टर चल गया, क्या याद रहने वाला? स्क्रैच याद रहने वाला है क्या? नहीं याद रहेगा ना, वही आईआईटी है एक्चुअली। आप लोगों को जो चीज बहुत दिनों तक याद रहती है ना, उसको जो तुम प्रिपरेशन मोड में डालते हो तब आपको आईआईटी में वो याद रहता है, वरना आईआईटी में याद नहीं रहता है। जब स्ट्रगल होता है तो आईआईटी में याद रहता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माय मैसेज एक्चुअली। यस सर। हाँ, है ना, इसलिए करो नहीं करो बराबर है। एग्जांपल देख के क्या ही थर्ड एक्सरसाइज करना, छोड़ दो ना, बाद में करना। 0 to infinity ln x divided by x square plus x plus 1।
बच्चों ये एग्जांपल लेने के पीछे मेरा लॉजिक समझो तुम। मैं यहाँ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि a टू 1/a जब लिमिट लेते हैं ना, तो उसमें भी एक पैटर्न सेट होता है कि इस पैटर्न वाले क्वेश्चन जो है ना, वो शायद इससे बन जाते हैं, बन ही जाते हैं इस पैटर्न वाले क्वेश्चन, राइट। बच्चों जरा ध्यान दो डिनोमिनेटर पे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का डिनोमिनेटर ध्यान दो बच्चों। दोनों ही क्वेश्चन में x को 1/t लिखने से डिनोमिनेटर जो है ना उसको इंपैक्ट नहीं हो रहा है। नहीं होगा। भाई सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं, या तो हम चुपचाप बैठे रहे या फिर सोच लें, सोचेंगे तो फायदा हो जाएगा, तो सोचो ना। नहीं इम्पैक्ट होगा x को सर। 1/t अगर डाल दें तो क्या नहीं फायदा? होगा। नहीं होगा सर। कोई चेंज नहीं होगा ना। और वो कोई चेंज नहीं होना, इसको एंड में जाकर के -i में कन्वर्ट कर सकता है। इट्स अ मैटर Yes, ऑफ sir. चांस। यस बच्चों यहाँ पे यही होने वाला। एक चीज बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सेम ही तो क्वेश्चन हो गए दोनों के दोनों। यस सर। i इज इक्वल टू -i आ जाएगा ना ये भी। अरे बाबा x को 1/t डाला, मैं तो जल्दी जल्दी लिख हाँ दूंगा। सर आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा। सर i आ इज जाएगा। इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -ln t -1/t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/t स्क्वायर, राइट, सॉरी, infinity to 0, right, for dt I is equal to -i is equal to 0। बच्चों अगर मैंने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है तुम्हें? ये यहाँ पे x को 1/t डालने से सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है। अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे ना बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ लो एक चीज हो ही जाएगी ना, 100% हो जाएगी। अरे मिडिल वाला में तो चेंज नहीं आएगा कुछ भी करके, मिडिल वाले में तो कुछ भी रख दे, x की जगह 2x 3x 5x कुछ भी रखे, तो ये चेंज आने नहीं जा रहा है। अरे x को 1/x से लिख रहा है ना, यस सर। हाँ सर। चेंज कितना आ जाएगा, इधर चेंज हो जाएगा ना। बोलो बच्चों क्या हाँ बोलते सर। हो? हाँ राइट। हाँ सर। तो बच्चों नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, उसको स्मार्टली सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगा। ऐसे इतनी जल्दी नहीं होएगा, थोड़ा टाइम लेगा। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, रुड़की एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है और अच्छे वेटेज वाला क्वेश्चन। आई डोंट रिमेंबर द मार्क्स एट दिस मोमेंट, राइट, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। ओके, इसी पे एफिलिएटेड है, लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए। पहले एक बार इसका पिक्चर डालो। सर तो जब ये ऐसा ln x बाय ऐसा क्वाड्रेटिक जैसा आएगा तब ये ट्राई कर रहे हैं ना। नहीं नहीं +1/2। नहीं, LNX नहीं, LNX तो एक नाम इधर रख दिया। मैं तुझे अच्छे 2 ही 3 प्रॉब्लम्स तो अपनी बुकलेट में है, अगर वो उनमें से एक आध प्रॉब्लम इधर करा दूंगा तो फिर मेरा वही चीज हो गई ना, फिर मैं बुकलेट सॉल्व कराने के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वो नहीं, आई डोंट वांट अच्छा। दैट। हाँ उधर में तुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस इतने क्लास क्वेश्चन है इस पे डिपेंडेंट, अगर ये याद रहा और वो क्वेश्चन हो गए तो बहुत मजा आने वाला है। बच्चों इसको रेज करूं क्या? यस सर। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर प्रॉपर्टी 6 में चले जाएंगे गाइस। 0 to infinity ln x divided by x square plus 2x plus 4। बच्चों I don't claim that the values here about what I've written the question of RE, but क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर थोड़ा चेंज मारा है। सर सॉल्व हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सॉल्व हो जाएगा ना, पर मतलब आपने वैल्यू चेंज किए पर सॉल्व हो जाएगा ना? करो ना एक बार ट्राई करो ना।
Oh, Rudra's done. Come on, guys. Try and make the coefficient of x square and constant term same. For that, you need a substitution. सर उधर ही अटक वेट हिंट दे दूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा। बच्चों एक चीज और समझ लो, ये क्वेश्चन उतनी जल्दी से नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा सा घिसना पड़ेगा तुम लोग को, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सहारा भी लेना पड़ेगा। Four students have done it. सर 2 मिनट का टाइम नहीं टाइम लगता है इसमें, आई बिलीव इसमें स्टूडेंट लोग को थोड़ा घिसना पड़ता है, टाइम लगता है। आई एम गिविंग यू इनफ टाइम। बच्चों आप लोग बाजू में वो रखा करो, कुछ शीट वीट रखा करो, तो किसी का जल्दी हो जाए ना तो शीट में से कुछ क्वेश्चन अपने सॉल्व करते रहो ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। कुछ का जल्दी होता है, कुछ को टाइम भी लगता है ना, तो सबको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा वो जो कितने लोग को ये चमका, ये मतलब स्टेप 1 x इज इक्वल टू 2t। सर अरे हैंड रेज नहीं करना है, इसके लिए हैंड रेज नहीं करना है। कितने लोग को क्लिक किया, ये x को 2t डाल दूंगा तो कोफिशिएंट सेम हो गया ना। यहाँ क्या अच्छा लिमिट्स क्या बन जाएगी, बताओ लिमिट्स क्या बन जाएगी। ये 0, ये तो इंफिनिटी रहेगा बच्चों, x इंफिनिटी तो t भी इंफिनिटी, और ये बन जाएगा ln 2x नहीं ln 2t। अब तुम सोच रहे होंगे यार अच्छे क्वेश्चन को गंदा बना दिया सर ने, नहीं लेकिन दिखेगा अभी तुम्हें अच्छा वाला। ये ln 2t डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। बोलो बच्चों 4 कॉमन आ गया बाहर, 1/4 कॉमन आ गया बाहर। इसको लिख दूं ln 2 प्लस ln t डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस t
प्लस 1 dt। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? 0 to infinity एंड 2 dt, 2 भी आएगा यहाँ पे, ये 2 dt वाला 2 उड़ा गया अपन लोग। हाँ बच्चों ये चमका मेरे हिसाब से, ये वाला इंटीग्रल तो किया अभी अभी, 0 बन जाएगा। ये 0 बन जाएगा, है ना? अब देखो ये 0 बनने के बाद ऐसा लगता है अब मजा आ गया, लेकिन मजा आया नहीं अभी, ये सॉल्व करना है अभी, है ना? तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 लिख देते हैं इसको, तो 1/2 लिखते हैं इसको। चार कितना बच गया? ln2 भी बाहर लिखते हैं ना, ln2/2, है ना? और 1/t² प्लस t प्लस 1 को लिखते हैं t प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। बच्चों ऐसे ही तो करते हो, ये क्वेश्चन तो किए हैं तुम लोगों ने बहुत सारे। यस सर। यस सर। dt, इसका आंसर tan इनवर्स के टर्म्स में आता है ना, 0 to infinity। बच्चों ये तो tan इनवर्स के टर्म्स में आता है ना, तो क्या लिखें इसको? ln2/2 और tan इनवर्स की टर्म्स में आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अब 1/a मींस 1/√3/2 tan इनवर्स t t प्लस plus हाफ half upon √3/2 √3/2, राइट? अच्छा ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? कैंसिल होगा ना ये, हाँ होगा। यस सर। तो ln2/√3 तो ये हो गया, और इस पे लिमिट लगेगी कौन सी? 0 to infinity। अब बच्चों इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। देखो इसीलिए दिक्कत आ रही है बच्चों को थोड़ा, ये थोड़ा घिसना पड़ रहा है। इन्फिनिटी डाला लिमिट मैंने, तो ये तो सब मीनिंगलेस हो गया बाकी सब। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया बच्चों? π/2 माइनस, अब 0 डाला लिमिट बच्चों यहाँ पे, तो 0 डालेंगे तो हाफ tan इनवर्स 1/√3 तो π/6 बने। 5/3 अच्छा ये कितना हो गया? π/2 माइनस π/6 इज π/3। तो π/3 यहाँ पे डाल दो, तो π/3√2 नो 3√3 into ln2। अच्छा समझ में आ गया क्या? हाँ अब जेई एडवांस में पता क्या करेगा, इस साल जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं ना, लास्ट ईयर और इस साल, वो क्या करेगा? तुम्हें ln2 की वैल्यू दे देगा ब्रैकेट में, और फिर इसका आंसर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा। तुम समझ लो कि तुम्हारी कितनी बैंड बजने वाली है इसमें। पाई का वैल्यू 3.141, हाँ 3.14, √3 का वैल्यू लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, ln2 का वैल्यू डालना है, मल्टीप्लाई करना है। वो अपने आप में एक क्वेश्चन है एक्चुअली, इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद वो अपने आप में फ्रस्ट्रेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग। इट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस, फ्रस्ट्रेशन है एंड में जाके, यहाँ आगे गड़बड़ होती है, समझ लो। इसलिए हर क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक जाना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल टाइप उसने पूछा है हम लोगों को, अब एटलीस्ट अब, ठीक है? पैटर्न ऐसा बन रहा है, यू कांट चेंज दिस। अच्छा ये समझ में आया सब लोग को? 8 स्टूडेंट्स। Yes, सर। सर अपने वो असाइनमेंट में किया ऐसे कैलकुलेशन वाला नहीं वो दे देंगे टेंशन मतलब, बहुत टाइम बचा हुआ है अभी तो, वो कराएंगे तुम लोगों को क्लास में। सर इसमें इंडेफिनिट किधर यूज हुआ? इंडेफिनिट यूज हुआ ना यहाँ पे, तो परफेक्ट स्क्वायर बना, ठीक है। हाँ तो वो इंडेफिनिट ही तो हुआ, और क्या हुआ बेटा? अच्छा ठीक है चलो बच्चों, प्रॉपर्टी 5 पे जो है ना कुछ और प्रॉब्लम्स है, वो मैं होमवर्क में डाल दूं, चलेगा ना अभी? यस सर। किंग के 10 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद वाले प्रॉब्लम्स जो है होमवर्क में ट्राई करो, और होमवर्क में जो डाउट्स होंगे वो क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा प्रॉपर्टी 6। सर I had to ask something in the previous question. बोलो ना। सर उसमें हम लोग x is equal to 4/t भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे ना? ऐसा क्या? मतलब आके देख ले यार, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। मिडिल टर्म फिर चेंज हो जाएगा सर 2/t कर सकते थे सर, हो रहा है उससे। हाँ सर। चेंज करके देख ले, कुल मिला के कहानी वैसी पुरानी वाली बननी चाहिए एक्चुअली, हाँ ठीक है ना? बट मिडिल टर्म चेंज हो ठीक है ना? अरे बाबा किसी ने किया है ना तो करो, और एक बार डालो ना ग्रुप पे, फिर दिक्कत आएगा तो क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? किसी ने भी जिसने किया एक बार फुल लेंथ सॉल्यूशन इसका डाल दो,
अच्छा ये प्रूव कर सकते हो क्या आप लोग 0 to 2a सर ये fx क्वींस रूल है ना? हाँ क्वींस रूल है ना ये? किंग तो खत्म हो गया, अभी क्वीन है एक्चुअली, राइट। 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx, and this is 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx। बच्चे 2 मिनट का टाइम लो ना समझने में इसको, कि ये प्रॉपर्टी मतलब कह क्या रही है कि भाई अगर x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करने से ये फंक्शन सेम ही रह जाता है, तो आंसर जो है ना, आंसर देते टाइम में ये लिमिट हाफ रह जाएगी, 0 to a रह जाएगी, और इंटीग्रल की वैल्यू डबल हो जाएगी, मतलब ये 2 ऐसे इधर आ जाएगा, ऐसे कुछ, ये रूल है ना। इसको प्रूव करना है बच्चों, कैसे करोगे बताओ? टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट्स बाद तो मैं तो प्रूव करने ही जा रहा हूँ अभी, फिर इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस लेंगे कुछ अच्छे अच्छे। हमने ये मार्कर मेरे को लग रहा है धीरे धीरे जाने वाला है, चेंज ग्रेट। कुछ गिराया है मैंने, तो आवाज आई हुई है। क्या स्पेशल है इसमें, मतलब क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े कि ये रूल प्रूव हो जाए? याद करो, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने अलजेब्रिकली प्रूव करी थी, वहां भी कुछ तो था जो अच्छा सा किया था हम लोगों ने। सर x को -t डाल के कर सकते? नहीं, सर पहले स्प्लिट कर सकते हैं। सर बेटा एक मिनट, हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बोल रहा है? सर वो लिमिट्स क्या डाली आपने? वो 2 into इंटीग्रल fx dx के 0 से लिमिट्स क्या? अच्छा 0 से a है। हाँ अरे बाबा, लिमिट 0 से है मैंने। अच्छा ये कुछ ऐसा करना था दिखता है। हाँ अच्छा एक चीज समझो ना, पता है तुम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो इधर में, कि ये क्वेश्चन तुमसे चाहता है कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है उसमें 2a माइनस एक्स भी इन्वॉल्व हो, मतलब इस जगह में 2a माइनस एक्स भी इन्वॉल्व हो। तो अच्छा एक बात बताओ, 0 to 2a fx dx को तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, 0 to a fx dx? देखो ये तो आंसर में है ही, ये तो आंसर में है ही, यहाँ 0 आ रहा है लेकिन ये तो आंसर में है ही। प्लस बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a to 2a fx dx? यस सर, हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? इसको छोड़ो, ये तो यहाँ आंसर में भी आ रहा है। अच्छा इसको पकड़ो, बताओ इसमें x की जगह क्या डालना चाहिए? 2a माइनस x। नहीं x को 2a माइनस x थोड़ी डाल सकते हैं, अरे हाँ वही, सॉरी, x को 2a माइनस t डालेंगे ना। हाँ
हाँ, x को 2a माइनस टी डाल दिया। अब मेरी बात सुनो, x को 2a माइनस टी डाल दिया तो dx आ गया कितना, माइनस डी। अरे मतलब तुम्हें क्लिक भी किया कि नहीं किया कि x को 2a माइनस टी डाल क्यों रहे? सर वो चाहिए ना हमको प्रूफ। हाँ, ये 2a माइनस एक्स चाहिए। अब तुम बोलोगे सर मुझे तो 2a माइनस एक्स चाहिए, आपको तो 2a माइनस टी आएगा। तो तुम्हें पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में लिमिट अगर बदल दी है तो वेरिएबल का कोई टेंशन रहता नहीं। यही सीखा है बराबर ना? तो बच्चों ये क्या बन गया बताओ, ये a x को a डाला, x को a, ये dx है ना, x को a डाला तो t कितना आ गया बताओ? a आएगा। x को 2a डाला बच्चों, x को 2a डाला, 0 आ गया। f ऑफ कितना आ गया बच्चों? 2a माइनस dx कितना आ गया? dx माइनस। बच्चों कुछ चमका क्या? यस ये माइनस यूटिलाइज कर लूं क्या? लिमिट्स 0 to 2a f of 2a minus t dt. बच्चों is it okay? Yes. बच्चों can I write this 0 to 2a? Now don't confuse. f of 2a minus x dx. Can I? यस बच्चों क्योंकि 2a माइनस टी एक्स होगा ना तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा x पर। हाँ अरे बाबा तुम बोलोगे सर ये टी पहले तो आपने कुछ और डाला था, आप कुछ और डाल दिया। इस बारे में तो अपन बहस कर चुके हैं ना पहले। 0 to a होना चाहिए। हाँ 0 से होगा ना सर। सॉरी इट्स अ मिस्टेक। अभी सही है बराबर है ना? हाँ। अच्छा एक टर्म ये छोड़ते चले आ रहा है पर हर जगह लिखनी पड़ेगी। तो बताओ ये टर्म यहाँ जाके क्या बन जाएगी? ये एक टर्म क्या है? 0 to a fx dx। तो ये बन क्या गया पता लग गया तुम लोग को? 0 to a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x। अच्छा प्रूव हो गया क्या क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो? यस सर प्रूव हो गया। और क्योंकि f of 2a माइनस x है तो फिर वो f of x अंदर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। हाँ अगर f of 2a माइनस x fx बन गया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 अगर f of 2a माइनस x माइनस fx हो गया तो ये 0 आ जाएगा। बस बन गया ना प्रॉपर्टी। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी को याद भी ऐसे ही रखना चाहिए। मतलब ये मैं ऐसे बॉक्स बना के लिख रहा हूं इधर, इसको ऐसे ही याद रखना चाहिए। 0 to 2a fx dx is nothing but 0 to a f of x plus f of 2a minus x bracket close dx। एंड बच्चों ये बॉक्स ऐसे ही याद करना चाहिए इसको। वैसे तो ठीक है, मतलब ज्यादा काम तो इसी तरह से यूटिलाइज करके करते हैं हम लोग, बट किसी अच्छे क्वेश्चन में बच्चों ये काम आ जाता है। समझ लो एक चीज याद करो गाइस, ये प्रॉपर्टी माइनस a टू a जब होती थी तो क्या लिखते थे बताओ? माइनस a टू a होती थी तो क्या लिखते थे? fx प्लस f ऑफ माइनस x लिखते थे ना इसको। यस सर 0 टू a में fx प्लस f माइनस x। इवन और प्रॉपर्टी याद है? हाँ सर x इक्वल टू माइनस t के साथ देखो एग्जैक्ट सेम जैसी दिख रही है मुझे तो ये। बच्चों आर यू ओके विद दिस? यस। इस प्रॉपर्टी को बच्चों यूटिलाइज करने के लिए क्या ध्यान रखना है? वापस बोलता हूं, x को 2a माइनस x से रिप्लेस किया, x को 2a माइनस x से रिप्लेस किया। अगर फंक्शन सेम आया तो ये आंसर, और फंक्शन माइनस साइन के साथ आया तो ये आंसर। लेकिन बच्चों क्या ये जरूरी है कि ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हो ही जाए? मानो x को मैंने 2a माइनस x लिखा तो वापस fx आए या 0 आए, इसके अलावा इनफाइनाइट आंसर और भी तो आ सकते हैं। यस सर बराबर ना? इसका मतलब बच्चों ये प्रॉपर्टी सेमी प्रॉपर्टी है, ये फुल प्रॉपर्टी नहीं है। समझ रहे हो ना तुम लोग? मतलब fx को अगर तुम 2a माइनस x से रिप्लेस कर रहे हो तो उससे वापस fx आए या वापस f ऑफ माइनस f ऑफ x आए तब तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज इस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों किंग रूल का एक पार्ट है एक्चुअली। हाँ बोलो ना। अगर हम x को 2a माइनस x डाल देंगे तो यही बनेगा ना? मतलब अभी तो हमने वेरिएबल्स के साथ ही प्रूव किया था। मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर x को 2a माइनस x डालें वापस fx आ जाए तब तो ये लग जाएगा ना प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वापस मान ले यहाँ f ऑफ 2a माइनस x है, इसकी जगह मान ले कुछ मान ले ln लॉग फंक्शन है, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1,
उसमें तो x को 1 माइनस एक्स से डालेगी तो 2 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 थोड़ी आ जाएगा, कुछ और ही आएगा, और नेगेटिव भी नहीं आएगा। अरे कोई भी फंक्शन डालें, एक बात बता, कोई भी फंक्शन डालें, जैसे मैंने x को sin x स्क्वायर ले लिया, sin x स्क्वायर ले लिया 0 to पाई में, तो बता f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या फिर माइनस एफ एक्स, ये दोनों ही आए, ये जरूरी है क्या? नहीं नहीं है ना जरूरी, कुछ और भी आ सकता है ना, और कुछ और भी आ सकता है, उस कंडीशन में पता है ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके कंडीशन नहीं आए सब, ऑलवेज आएगी वैसे। हाँ हाँ अगर नीचे वाला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा ना? हाँ ये तो ट्रू रहेगा, हाँ ये तो ट्रू रहेगा, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होगी। बच्चों फॉर एग्जांपल यूं समझो इस चीज को, अरे यार फोटो लो ना प्लीज एक बार। बच्चों प्लीज फास्ट। ले लिया फोटो। अरे ये समझो, मतलब इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना चाहिए मुझे लगता है। 0 to 4 पाई में cos क्यूब x sin 4x dx, बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है। बच्चों f ऑफ 4 पाई माइनस एक्स, बताओ f ऑफ x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा सर, आएगा आएगा। अरे बाबा ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो पावर 4 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता। यस सर। sin 4 पाई माइनस एक्स इज sin x ओनली, और cos x माइनस sin x लेकिन पावर 4 है तो, और cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो बच्चों बताओ क्या लिखूं? ये i इज इक्वल टू क्या लिख दूं? i इज इक्वल टू क्या लिख दूं? 2 टाइम्स 0 टू, बताओ यहाँ क्या लिखूं? 2 पाई 2 पाई बराबर ना? cos क्यूब x sin 4x dx बराबर है बच्चों? यस सर। अच्छा अब बताओ f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या आ रहा है? वापस एफ एक्स आ रहा है, वापस आएगा। हाँ तो जो वापस क्या लिख दूं आई को बताओ? 4 टाइम्स 0 से पाई cos क्यूब x sin 4x बराबर है, मानते हो ना बच्चों? फिर वापस हम लिख सकते हैं f ऑफ पाई माइनस, हाँ लेकिन पता है वापस 0 आ जाएगा अभी, माइनस एफ एक्स, अब 0 आ जाएगा, अब मजा आ जाएगा। अब लगेगा कि कुछ यार क्या है यार, कितना लंबा खींचना पड़ा है। बच्चों अब बताओ, अब बताओ f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आया? माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स किसकी वजह से आया माइनस? बताओ। cos की वजह से सर, कॉस की वजह से, ये तो सेम ही रहेगा। हाँ। लेकिन इस कॉस की वजह से ये माइनस में हो जाएगा ना, और बच्चों ये माइनस आया तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? ये प्रॉपर्टी इस तरह से हैंडल होती है, राइट? इस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए हम लोग को अच्छे खासे एग्जांपल्स के साथ जाना होता है, और वो एग्जांपल्स बोर्ड पे नहीं प्रैक्टिस शीट में जाते हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को नेक्स्ट वाला तुम लोग को सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ट्राई करो बच्चों। पहले 4 पाई जो है वो 2a है ना सर, जो हमने अभी वो किया था, मतलब वो 2a का फॉर्म है। हाँ बेटा वही ठीक है ना? जस्ट लेट मी सी द प्रॉपर क्वेश्चन बच्चों। हाँ गाइस मुझे इसका क्वेश्चन मिला, और जो क्वेश्चन मुझे इसका मिला ना उसमें तुम लोगों को मजा आने वाला है। गंदा, एकदम गंदा, डर्टी क्वेश्चन बच्चों, बट आई बिलीव यू विल एंजॉय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेट अस सी। बच्चों एक चीज बताओ,
पहले मैं इसका क्वेश्चन लिखने से पहले फर्स्ट का ए ले लेता हूँ इसको। अब बच्चों फर्स्ट का बी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बताओ ये क्वेश्चन होता है बच्चों अभी 0 to 4 पाई, 0 to 4 पाई, और बच्चों ये होता x cos क्यूब x sin 4x dx। बच्चों ये आई है। अब बच्चों मुझे बताओ इस x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं क्या? देखो मैंने तुम्हें बोला है कि अपन जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तो आजकल मतलब मुझे इन दिनों में ना करीब 1-1.5-2 महीने से तुम्हारे बैच में एक बहुत डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस दिखता है। सब बच्चे ऐसे इंटरेक्टिव रहते हैं, सब बच्चे थोड़ा फास्ट करते हैं। मुझे जब मैं करूँ ना, तो एकदम अलग टोन पर रहा करो कि यार ये क्या पूछा है सर ने, ऐसा कुछ पहले किया है क्या, इसीलिए तो पूछा है, वरना मैं क्यों पूछूंगा यार, सीधी सी बात है। और जो इस एक्स को एलिमिनेट बहुत जगह किया है तुम लोगों ने। किंग लगा के ऐड करो। यस सर, यस। बताओ अगर किंग लगाओगे तो इस पे कुछ फर्क पड़ेगा बच्चों? नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं सर, वो तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया है ना। तो बच्चों आई क्या बन जाएगा बताओ? आई बन जाएगा 0 to 4 पाई, 4 पाई माइनस एक्स, और ये कॉस क्यूब एक्स एंड साइन 4x, बराबर ना? हाँ सर। ऐड कर सर ऐड करने के बाद हमें इंटीग्रल ऑफ 4 4 पाई पाई आएगा। वाला है ना बच्चों, ऐड करोगे तो 4 पाई इंटू ये बचेगा और एक्स एक्स वाला कट जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ 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 Yes, सर। sir. हाँ सर। 4 पाई टाइम्स 0 to 4 पाई। तो सर 0 ही आएगा। अरे यार कम ऑन यार, पहले मत बोलो, एक बार लिख 8 पाई स्क्वायर आएगा सर, 8 पाई स्क्वायर। साइन 4x dx। बच्चों यही बचेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों अब तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया है ना हम लोगों ने ऊपर। वही 0। इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है ना? क्या बोलते हो? यस। 2i is equal to Yes, 0 sir. हो गया तो व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? i 0 आएगा ना? हाँ बच्चों ये x को गायब करने वाला गेम है ना, ये बड़ा मस्त गेम है। तुम्हें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस होमवर्क में आज मिल जाएंगे, जिसमें तुम्हें 8-10 क्वेश्चन में नहीं 34 क्वेश्चंस प्रॉपर्टी 5 पे है, सॉरी टोटल 34 में से 11 हम लोगों ने किए हैं। प्रॉपर्टी 5 पे दूंगा आज होमवर्क तुम लोग को मैं, राइट? उसमें से 34 में से कितने हम लोगों ने किए? 10-11 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी सब तुम लोगों को करने हैं। तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ एक आध तो अच्छे वाले क्वेश्चंस जो है ना शायद डाउट में आएंगे। ये समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन दे सकता हूँ एक अच्छा वाला? हाँ सर। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, मतलब अगर किसी को बनाना तो उसको बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस प्रॉपर्टी में। नहीं बना तब भी समझने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये फोटो हो गया ना? सॉरी एक बार फिर पूछो। अरे फोटो कौन ले रहा है बोलो ना। स्क्रीनशॉट बच्चों। अरे यार ऐसे करके देर करते थे। अच्छा ठीक है, मैं तो बैठ बाजू में जाता लिख दो क्वेश्चन। डन सर। हूँ। हाँ कर लो ना यार, थोड़ा अलर्ट रहा करो ना सब बच्चे। कोई भी एक बच्चा लेके फटाक से ग्रुप पे डाल दो, 2 बार तो कोई डालेगा नहीं, जो डाल देगा बस उसके बाद में कोई, या फिर हर बार डिसाइड कर लेते हैं एक बार कौन फोटो लेने वाला है। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। 0 to guys can you give me a minute please? एक मिनट। 0 to पाई, 0 to पाई बच्चों दो क्वेश्चन है, वन बाई वन करेंगे दोनों को। x साइन स्क्वायर साइन एक्स, अगर तुमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाने का सोचा भी तो क्वेश्चन छोड़ने के बराबर हो जाएगा। cos स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, cos स्क्वायर ऑफ cos एक्स, सॉरी बच्चों ब्रैकेट अपन ने डबल लगाना है ना, तो ये ब्रैकेट लगाया और ये dx। अब करो, चलो शुरू करते हैं। सर आप टाइम दे रहे हो? हाँ मैंने टाइम दिया ना इसके लिए। पहले x गायब करो, देखो x गायब करने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, दिस एंड दैट, जो भी है मतलब whatever। हमने
बच्चों मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिएगा बीच में, मैं ये ऑफ कर रहा हूँ। हाँ तुम लोग करो, एक क्वेश्चन और लिख दूं क्या इसके नीचे? मैं इससे पहले ये तो कर दूंगा। अच्छा चलो पहले ये कर लो, इसका आंसर लिखना। नहीं यार बहुत जल्दी से हो जाएगा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और लिख देता हूँ बिकॉज आई नीड 2-3 मिनट्स। सर बस आंसर कंफर्म करना तो आप बस लिख सकते हैं उसे बोर्ड पर। Guys, I requested you to take 2 minutes. Can you please help me for that?
sorry guys, हाँ, but 25 students have done it. It's a good and it's a big news. मतलब इस क्वेश्चन को 25 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर ले वही डिफिकल्ट है. आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 2. अब अपने आंसर वेरीफाई करो. तो पाई स्क्वायर बाई 4 किसी का आ रहा होगा, नहीं किसी का पाई स्क्वायर आ रहा होगा तो वो तो गलती पकड़ लो बच्चों. 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है. पाई स्क्वायर बाई कितना आना चाहिए आंसर? पाई स्क्वायर बाई 2. तो बच्चों देखो जरा, जिनका पाई स्क्वायर बाई 2 आ रहा है जरा हैंड रेज करो या लोअर करो अगर रॉन्ग आ रहा है तो. नंबर चेक करते हैं कितना नंबर करेक्ट जा रहा है. राइट, 29 स्टूडेंट्स. इट्स अ गुड स्कोर. बच्चों अगला वाला प्रॉब्लम जो ना उसमें मुझे चाहिए कि मतलब 60% स्टूडेंट्स एटलीस्ट उन लोग को आ जाना चाहिए. आई को मैं क्या लिखूं बच्चों यहाँ पे? आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 टू पाई एंड टेल मी पाई माइनस एक्स. और बच्चों ये तो सेम रहेगा ना? सेम. और उसको जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये एक्स वाला पार्ट जो कट जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा बच्चों? 0 टू पाई साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स. बच्चों बराबर है? क्या बोलते हो बच्चों? 2i, आई कितना हो गया? आई कितना हो गया बच्चों? पाई बाई 2. लेकिन बच्चों एक बात बताओ, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स ही आता है. एफ ऑफ एक्स आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये 0 टू पाई बाई 2 हो गया और डबल हो जाएगी लिमिट. मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ. यस सर. ये कितना आ गया बच्चों? ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर साइन एक्स. अरे ये मस्त क्वेश्चन है यार. एक बार और इसमें अभी किंग लगेगा अभी. अब बच्चों या तो इस क्वेश्चन को यहाँ लेके बैठे रहो या फिर एक बात बताओ, तुम वापस क्या ट्राई करोगे इसमें? वापस ये एफ ऑफ पाई माइनस एक्स ऐड कर देंगे. अब बच्चों किंग लगा के ऐड कर दो इसको. क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. किंग लगा के ऐड कर दो तो आई कितना बन गया? पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2. किंग लगाया तो ये कितना बन गया? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स dx. बराबर. बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो. बताओ क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? 2i इज इक्वल टू कितना बना बताओ? आई तो आ गया कॉमन और अंदर कितना बन गया? साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स. इन दोनों को ऐड किया बच्चों कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. बन आ गया ना? सर और एक 1 2 एक और 1 dx. बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया. फाइनल आंसर आ गया i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2. दिस इज व्हाट आई feel that if looking at a question we feel it's a dirty question and we use our brain smartly, we solve the question and we get the answer, we gain a lot of confidence. बच्चों before giving the question only I told you कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है ना उसको कॉन्फिडेंस आने ही वाला है. आप देखो सेकंड के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इट शुड नॉट बी 29, इट शुड बी डबल. एक्चुअली 60 स्टूडेंट्स तक को शायद बन जाएगा. शायद बच्चों शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि चांस बनता है नहीं भी बने. वन सेकंड सर मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोल रहा बेटा. सर आई में वो पाई माइनस एक्स सेम आई कैसे दिया? अरे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स यहाँ लगा. साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बता? सर नहीं वो वाला समझा, उसके ऊपर वाले इसके ऊपर ये सेम. अरे साइन पाई माइनस एक्स लगाएगा तो साइन यही आएगा. कॉस पाई माइनस एक्स लगाएगा सेम ही है, यही आएगा. तो ये दोनों तो सेम, मतलब इसको पूरा लिखने की जगह मैंने सेम लिख दिया. हाँ सर वो एक्स पाई माइनस एक्स वाला पार्ट सेम कैसे वो वाला फंक्शन? अरे बाबा ये माइनस किंग एक्स लगाया. किंग लगाया ना यार. किंग. ओ ओके सॉरी सर. सर वो लास्ट स्टेप में आपको कैसे स्ट्राइक किया? वो किंग लगाना था, मैं उधर ही अरे पता है ऐसे थोड़ी स्ट्राइक करता है. मैं तो हर साल पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे स्ट्राइक किया. तुम लोगों को टाइम लगता है थोड़ा. समझो एक चीज, पता है यही डिफरेंस है जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि तुम लोग लड़ो क्वेश्चन के साथ में. किंग नहीं लगाओगे बैठे रहोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, कुछ तो उल्टा पुल्टा करोगे ना, प्रॉब्लम हो गया. एक बार डायरेक्शन पकड़ में आया ना
पता है ऐसे गोली की रफ्तार से बच्चा रिजल्ट में जाता है ठीक से, बस एक बार पकड़ में आ जाना चाहिए कि मुझे खुद से स्ट्रगल करते रहना है। बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कितने लोग को आता है। I is 0 to pi, तो your x sin of cos square x, sin of cos square x into cos of sin square x, dx करो। Sixteen students have done it. $31. That's nice. But it's almost similar question. I'm writing the answer and try to get it. 5 square by 4 sin 1.
यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर आया आया ना? Which I have sent you the homework. Just look at this properly. Oh, 40. That's nice. Homework. When do we have next lecture, Bacho? Can you tell me? So next section. Solve PDF on PDF or that I mean screenshot property 1 to 5. अच्छा एक क्वेश्चन मैंने डाला फ्राइडे है. को लेक्चर है. फ्राइडे मतलब आज क्या आज वेडनेसडे? वेडनेसडे. यस सर, परसों लेक्चर. परसों लेक्चर है ना? हाँ तो यार 30 क्वेश्चन तो करोगे ना यार बच्चों का. ऐसे होमवर्क नहीं करोगे तो पर आगे कैसे पढ़ेंगे? बराबर ना? यस सर. लेवल असाइनमेंट में आज नहीं दे रहा हूँ. लेवल असाइनमेंट में नेक्स्ट टाइम दूंगा. नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टी 6 और 7 के कुछ वो मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, 5-10 ही मिलेंगे उसमें. 6-7 के मिलेंगे और लेवल असाइनमेंट में करीब 75 क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब फ्राइडे को. ठीक है ना? ओके सर.